It was in the 1990s that in Mumbai, right from the Shivaji Mandir premises, which you see around where I'm standing at this point of time, that the agitation for Maratha reservation actually began. Just right behind me, as we are going to walk down, is a small room, which is the Maratha Mahasangh room, as it's called. And that's from there the strategies have always been chalked out. Now, if you talk about Mumbai alone, they claim that they have around 30% of the population over here are the Maratha population, and at least 12 to 13 of the constituency seats over here of the MLAs is going to be impacted by the Maratha votes. Roughly across the state, it will amount to 32 to 34% as the figures are still being finalized. This is the room which you are seeing is the main office of the Maratha Mahasangh. Now, the interesting part over here is that the Maratha issue had a deep impact on the Lok Sabha results as well. And the reason, of course, was a palpable anger against the BJP, against Eknath Shinde, who himself is a Maratha. There was this anger which the MVA now wants to replicate. But the difference is that with Patil's withdrawal from the poll fray, will that have an impact? Well, sources say certainly, and the calculation on the ground is that this could be a disadvantage for the BJP to a certain extent, because if he had been contesting, it would have divided the anti-BJP votes. But the second thing and important factor is that at least in Mumbai, the feeling is that caste is not a very important factor when it amounts to going out and voting. Therefore, over here, the Maratha issue perhaps would not have so much of traction. But it's largely in the rural areas, in the Marathwada belt like Aurangabad, Jalna and all those areas where the deep impact will be put to test this time round in the battle for the state of Maharashtra. Well, the battle for Maharashtra is also a battle for the reservation and over the reservation issue. And what is being watched out is that in Marathwada, the performance which was not faced by the BJP, will that be replicated once again? In fact, we are right here, as I was talking about, at the Maratha Mahasangh office in Dadar at the Shivaji Mandir. And let's just talk to people who've been involved in that agitation over here. ये pictures मैं देख रही हूँ 1980s, 90s के pictures है agitation का. लेकिन क्या आपको लगता है ये एजिटेशन का मायने पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो रिजर्वेशन की बात आप लोग करते आए हो मराठवाड़ा एरिया में भी और बाहर में भी, वो शायद पूरा नहीं हो पाया? क्या इस चुनाव में उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है? इस चुनाव में इसका फैक्टर होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इस महाराष्ट्र में इतने मोर्चे आंदोलन हुए पिछले 2016 से करोड़ों के मोर्चे निकले. अभी जरांगे पाटिल के मीटिंग में भी 2-2 करोड़ के आदमी इकट्ठे हो गए. हमारी एक ही मांग है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन आज तक वो मामला हल नहीं हुआ है. लेकिन उसका इफेक्ट जो है तो आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के ऊपर जरूर पड़ेगा. लेकिन जरांगे पाटिल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है उससे कुछ प्रॉब्लम होगा, नुकसान होगा, या उनको लड़ना चाहिए था? नहीं, अभी ये बेसिकली मराठा क्रांति मोर्चा का जो 2016 से मूवमेंट चालू है, उसके पहले तो अप्पा साहब थे, पाटिल साहब थे, उसके बाद कई हमारे जो संगठन है ऑलमोस्ट अगले साल हम 125 साल के हो जाएंगे. इतना बड़ा हमारा मराठा का संघर्ष है इसके बाद. और लास्ट 40 साल से हमारा संघर्ष हो रहा है आरक्षण के मामले में. पहले आर्थिक था, फिर बाद में ओबीसी के अंदर का हो गया, फिर बाद में अलग अलग तरीके से उसमें होने वाला. अब जो जरांगे साहब का जो आंदोलन जो है वो हमने चालू किया था ऑलमोस्ट 2020-21 से चालू हुआ था कि वो उपोषण करते हैं और लंबा उपोषण करते हैं. एक जो सबसे बड़ा उनका उपोषण तो 109 दिन का था. उसके बाद के उपोषण करते हैं. आज का जो उपोषण जो है वो 10-15 दिन का करते हैं. और उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया, एक ऐसा आत्मविश्वास निर्माण कर दिया मराठों के बीच में, मराठों के जवानों के बीच में, कि नहीं हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट. अगर कितना भी बोले, कोड बोले, ये बोले, वो बोले, लेकिन अगर हमको चाहिए तो सरकार हमारी है, हम चाहे वैसा उनसे बात कर सकते हैं. और उसी प्रकार से हमने ये इकट्ठा किए पूरे लोगों को. हम इस आंदोलन में 58 के 58 मोर्चा में शामिल थे. तो लड़े क्यों नहीं चुनाव? आपको लगता है उनको लड़ना चाहिए था? देखिए, उसी पे आ रहा था मैं. चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग बात है, बट हमने प्रायोरिटी किसको दी? चुनाव चुनते थे हम 50-60 हमारे मराठा भाई जो है वो आमदार बन जाते थे. बट हमने डिसाइड किया कि हमको क्या चाहिए. दो था, एक थी थाली थी पूरी सजाई हुई थी कि जहाँ पे आप जाके बैठो, आमदार निवास में जाओ, विधानसभा में जाओ, वहाँ पे क्वेश्चन करो. ये सजाई सारी आपको उसका सैलरी मिलेगा 3 लाख 4 लाख रुपया, एक 30-40 करोड़ का आपको फंड मिलेगा. तो हमने उसको ठुकरा दिया. और हमारा संघर्ष जो है जिसके लिए हम लोग लड़े हैं
जो हमारी 6 करोड़ की जनता जो हमारे साथ है, जो जरांगे पाटिल साहब के साथ है, या दिलीप दादा जो जैसे हमारा नेता जो है मराठा महासंघ के अध्यक्ष जो है, उनके साथ में रहने का कारण यही है। उनको वो सजाई हुई थाली नहीं चाहिए। हमको जो छोटे से छोटा जो हमारा मराठा समाज का जो गरीब है, जो गरजमंद है, उसको आरक्षण की जरूरत है। ये 30-40 आमदार बनना हमारा कोई ये ख्वाब नहीं है। चुनाव जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पोजीशन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें, एक फीलिंग ये भी है कि जो मराठवाड़ा बेल्ट या रूरल बेल्ट में काम करता है, वर्क होता है, क्लिक करता है, वो शायद मुंबई जैसे अर्बन वोट्स में कास्ट उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। क्या ये भी एक कारण है कि आपको लगता है कि चुनाव ना लड़ना शायद मुंबई से बेहतर था? नहीं, बम्बई की बात अलग है और रूरल एरिया की बात अलग है। मेरा जो सोच है, जरांगे पाटिल साहब ने जो निर्णय लिया कि इलेक्शन नहीं लड़ने का, वो सबसे अच्छा निर्णय है। हमें चुनाव लड़के 5-50 एमएलए जाके उसमें कोई फायदा नहीं है। हमें आरक्षण चाहिए। नहीं तो चुनाव लड़ते तो क्या पता आरक्षण का दबाव आप डाल सकते थे असेंबली के नहीं, अंदर। वो ऐसी कंडीशन आज के दिन में राजनीति में रही नहीं। जो कल हमारा था वो आज किधर है कि बोल नहीं सकता है। क्या ये सही बात है? तो हमें बाहर की लड़ाई हमें लड़ना है। अभी उम्मीद हम ये भी रखते हैं कि जो सत्ता में है उन्होंने नहीं दिया, अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो आज बोल रहे हैं कि हम आरक्षण की मर्यादा बढ़ाएंगे, दे देंगे, मिलेगा तो अच्छा है। और हमारे आज के जो आरक्षण है 50% जो मर्यादा है, मराठा महासंघ की अलग से डिमांड है। अच्छा, हमारी डिमांड ऐसी है कि आरक्षण की मर्यादा बढ़ाओ, ताकि किसी को दिया हुआ थाली में हमें नहीं चाहिए। अब और हाथ में है, कांग्रेस ऊपर भाजपा की सरकार है, इधर मिली जुली भाजपा की सरकार है। ये लोग अगर चाहते तो ये क्वेश्चन कभी का 2 साल पहले ही देता, लेकिन उनको देना नहीं है। अच्छा, आप बात करें रिजर्वेशन और बढ़ाने की, और जाते जाते मैं आपसे ये आखिरी सवाल इसलिए पूछना चाहूंगी कि आजकल आप देख रहे होंगे कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। क्या आप उनकी बात से सहमत हो? वो क्योंकि मराठा रिजर्वेशन की बात नहीं करते, वो कहते हैं ओबीसी, दलित। तो ये रिजर्वेशन हमें कहाँ तक ले जाएगी? देखिए, रिजर्वेशन की जो बात है वो तो जो राहुल जी कर रहे हैं, उन्होंने बोला भी है कि जैसे आ जाएगा, हम सरकार में आते हैं तो हम ठकाठक वाला बात कर रहे हैं, ठकाठक आरक्षण कर देंगे। ठकाठक वो जो कास्ट सेंसस है जो लास्ट कभी हुआ है, जरा जानकारी लो, 1931 का है, जब अंग्रेज थे ना तभी कास्ट सेंसस हुआ है। और मुझे पता है कि अभी बीजेपी ने बोला है कि हम 2025 में जनगणना करेंगे। यानी कि जो मराठों का जो प्रेशर जो है, देखिए उसके पहले बहुत सारे आंदोलन हो गए, जाटों के हो गए, गुजरात में गुर्जरों के हो गए। राहुल गांधी का बात आप मानते हो? वो जो रिजर्वेशन बोलते हैं, ओबीसी दलित की बात करते हैं, वो मराठा रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे अभी। देखो वो क्या करते हैं, राहुल की गांधी की, हम मराठा हैं, हम भी मैन में तलवारें रखते हैं, कोई गुलाब का फूल रखते नहीं। तो हमको ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राहुल गांधी अगर उल्टा अगर बर्ताव करेंगे, राहुल गांधी की कंडीशन भी सेम फडणवीस की जैसे हो जाएगी, बीजेपी जैसे हो जाएगी। हमने तय किया कि अब नहीं करेंगे। आप जो बात कर रहे थे अभी, जो साहब को पूछा था कि मुंबई में इसका परिणाम होगा कि नहीं, हमने 4 MLA MPs यहाँ से चुन के लाए। और मुंबई में आपको बोलता हूँ कि मराठों की संख्या जो है ना 20% है एक वार्ड में। अगर आज विधानसभा क्षेत्र देखोगे तो 40 से 50 हज़ार के पास मराठा है। पूरा कोकण का बेल्ट, सातारा सांगली का बेल्ट ये मुंबई में रहता है। आप अगर कोकण में जाओगे तो कोकण कब भरता है आपको बोलता हूँ, कोकण के मराठे जो जाते हैं ना सिर्फ गणपति पर होली में, तब तक ताले रहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा बेल्ट यहाँ पे, और हमको कॉन्फिडेंस है कि जब एक बार जरांगे पाटिल ने और मराठा महासंघ ने बोला है कि अगर गिराना है, हमने तय किया है कि अब गिराएंगे, जो रिपीटेशन होगा जो लोकसभा का होगा वही अभी इस टाइम होगा। Okay, so that's an optimism and confidence that the Maratha factor, which played an important role as far as the Lok Sabha elections, are going to be replicated. But Mumbai tells up and throws up a different story. For now, I'm going to wrap up from Mumbai, and the Maratha factor may not work so much as far as urban areas goes. But of course, Team News 18 is also going to be traveling to the epicenter, which is in Jalna, Aurangabad, and Jarangi Patil is of course a potent factor.